Namaskar and welcome back to another podcast of Dadish International Trade Foundation. आपको पता ही है कि दादिश इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन आप लोगों के लिए कई सक्सेसफुल पीपल को सामने लेकर आता है so that we can get inspired from their story, we learn from them, we try to understand the difficulties and how they overcame their difficulties and became so successful. Today we are going to meet one international figure, Miss Meenu Brijesh Vyas. Namaskar. Namaskar. Welcome. The day. Greetings. Thank you. The day, everyone. Thank you. आप international figure हैं and you are the global head, I presume, global head of a multinational company which is into certification work. उसका नाम है शायद Global Gemological Science International. Okay, and that is in USA. Yes, it is. उसके तो और भी branches होगी. I know. We are in 6 countries. We are in India, we are in USA, we are in Botswana, Hong Kong, then Dubai. In India, we are at 4-5 places. In Mumbai, we are at 3, like TC, Trade Center of BKC, then MIDC, SEEBS. And आप global head है. जी, I am global head. Traveling a lot. Yes. काफी traveling. Yes. आपके बारे में, how did you come to join this? ये क्या? It's a very. Normally, it is very difficult to see ladies into this kind of a trade. Yeah. So ladies का है, but to become a global head is hats off to you. Thank you so much. Actually, it's a very interesting story. When I got married, actually my husband is a jeweler. So when I got married, I was pursuing my BA. I am from arts background totally. Now I become a scientist because of the gemology. But he has suggested me that you are so intelligent in studies, so you should do something different in this field. And he was knowing that there are certain courses who belongs to the gem and jewelry. So he has suggested me you should pursue that course. होता क्या है ये? Gemology है, it's a subject, Ratna Vigyan. If I say in Hindi, it's a Ratna Vigyan where we people identify gem material. First of all, we have to identify whether it's gem material or not. So it depends on 4 C's. 4 C's मतलब 4 C. Diamond के केस में तो शायद सभी लोग जानते हैं. What are 4 C's? But they are also applicable on color stones. 4 C's means color, clarity, C for color, cut, C for clarity. for clarity, C for cut, C for carat size. अच्छा. सपोज कोई पत्थर, एक ऑर्डिनरी पत्थर एक जेम मटेरियल से कैसे अलग होता है, या एक जेम मटेरियल एक ऑर्डिनरी पत्थर से कैसे अलग होता है, वो जेम क्यों कहलाता है? तो जेम तब कहलाता है जब उसमें कलर होता है, मतलब इट हैज ब्यूटी, एंड ब्यूटी बिलोंग्स टू 4 C's, दैट इज कलर, क्लैरिटी, कट एंड कैरेट साइज. अगर कोई पत्थर है, मान लीजिए आपको पन्ना चाहिए, पन्ना इज नोन एज एमरल्ड. एमरल्ड चाहिए तो एमरल्ड शुड बी ग्रीन ओनली, एंड ग्रीन में भी वो परफेक्ट वाला ग्रीन, नॉट मच ब्लूइश और मच येलोइश. परफेक्ट हरा जो होता है वो परफेक्ट हरा शुड बी देयर. द अमाउंट ऑफ द कलर, दैट द डेप्थ ऑफ द कलर शुड बी प्रॉपर. दैट इज कलर. And suppose you are going for some diamond, obviously it should be colorless, absolutely colorless. So means in colorless stone, lesser the color, better the quality. Okay. In case of color stone, higher the color or perfect the color will be the high valued color stone. So this is the importance of the color. Then next thing is clarity. Suppose you are going for some stone and it's not transparent, it's included. So it will be less valued. So once the stone is clear, there's no inclusions, then it will be most valuable stone. But once the stone is not in cut form, means stone comes from the earth in rough form, you have to cut it as per your requirement. So as perfect the cut will be the better quality. So cut should be perfect, precise. So this is the value of the cut. Then next thing, suppose all 3 you have, but the size of the stone is very small, then there is no value. It should have some weightage. So this is the effect of weight, that is known as carat. Carat क्या है? Carat is the numerical value to measure the stone
or to weighing the stone. So carat is equal to 200 milligram. अच्छा, वो 200 milligram is 1 carat. एंड स्टोन जितना भी वेट किया जाता है वो सारा कैरेटेज में किया जाता है। ये वो कैरेट नहीं है जो आप समझे कि प्योरिटी ऑफ एक गोल्ड। एक कैरेट होता है सी से शुरू होता है, दैट कम्स फॉर जेम मटेरियल। एक कैरेट होता है KARAT, दैट इज अलग अलग उसके टर्म। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं बिकॉज इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड कि K से जो स्टार्ट कैरेट होता है दैट इज ऑफ प्योरिटी ऑफ गोल्ड। दैट्स अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। आपने शायद कुछ 2 या 3 किताबें भी लिखी, उसके बारे में कुछ बताएंगे? Yes. Actually, my journey started after my marriage, as my husband suggested that course. First, I did my gemology from India. When I succeed here, then my husband suggested what do you want to do now next. So I came to know about that abroad things. That courses are running over there also. So I desired for FGA. FGA is Fellow of Gemological Science. Oh. Gemological Association of Great Britain. So I want to become a FGA. Then I did gemology from London, and by the grace of God, by the blessings of my elders or my hard work, I stood best in the world. Congrats. So Council of the India, Gem and Jewelry Export Promotion Council offered me the post directly as an assistant director, and I worked for Gem and Jewelry Export Promotion Council for 20 years. 20 साल का? Yes, 20 साल का experience in Gem and Jewelry Export Promotion Council. Then, 3 years back, I have joined that international laboratory, working as a global head gemologist in Gemological Science International. And in that Gemological International Science, I have authored 2 books of gemology. And yes, these books are written by me and my team of gemological. ये बेसिकली क्या है? आपने इतनी भारी किताबें, इन किताबों से आपको स्टूडेंट बिकम ए जेमोलॉजिस्ट। दीज आर द कोर्स बुक्स, कोर्स नोट्स। अच्छा। हाँ, तो मैं और मेरी जेमोलॉजिकल साइंस टीम ने मिलकर इसको प्रिपेयर किया। फिर हम दिस इज पब्लिश्ड अंडर द बैनर ऑफ जेमोलॉजिकल साइंस इंटरनेशनल। अभी स्टूडेंट्स इन किताबों से ही कोर्स करते हैं। वी आर रनिंग एडुकेशन ऑल्सो। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा ये यहाँ क्लियर कर दूं कि व्हाट इज जेमोलॉजिस्ट। लोगों भी, कई लोगों को ये जिज्ञासा होता है क्या ये जेमोलॉजिस्ट। जब मैं जेमोलॉजिस्ट बन गई तो मुझे लिटरली स्पेल आउट करना पड़ता था कि जेमोलॉजिस्ट क्या है। जेमोलॉजिस्ट इन हिंदी इट्स नोन एज रत्न विज्ञानी। रत्न विज्ञानी जो कि किसी भी सिमिलर लुकिंग पत्थर को, जैसे एक जैसे दिखने वाले पत्थरों को अलग कैसे किया जाए। एक कांच है, एक हीरा है, एक पन्ना है, एक माणिक्य है, एक सिंथेटिक है, एक नेचुरल है, एक ट्रीटेड एक अनट्रीटेड है। इनको अलग कैसे किया जाए, ये जो आर्ट है या ये जो स्टडीज है वो जो कर ले और उसको क्लियर कर ले या उसमें सक्सेस हो जाए, दैट पर्सन बिकम ए जेमोलॉजिस्ट। सो आई एम ए जेमोलॉजिस्ट एंड वर्किंग फ्रॉम 25 years इन द जेम एंड ज्वेलरी फील्ड। और इसमें हमारा जो काम है वो क्या है कि हम लोग सर्विसेज देते हैं बेसिकली तो ज्वेलर्स को, कि जितने भी ज्वेलर्स की वैल्यू आप you decide उसका DNA। we don't decide value, we just identify the area कि स्टोन, मान लीजिए आप एक ट्रेडर हैं, आप एक एमरल्ड डीलर है, मान लीजिए आपने एमरल्ड का कोई पैकेट खरीदा। अब आपको डाउट हुआ कि मेरे इस एमरल्ड में कोई सिंथेटिक तो नहीं है या कोई ट्रीटेड तो नहीं है, तो आप क्या करेंगे, लैब की सर्विसेज लेंगे और हमारे पास आएंगे उसको कंफर्म करने के लिए कि जो मैंने पैकेट खरीदा एमरल्ड का वो पन्ना ही है ना, वो एमरल्ड ही है ना, वो कुछ और तो नहीं है। अब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि जो मैं सेल करूंगा वो मैं एक राइट चीज सेल कर रहा हूँ। और दूसरा क्या होता है, एंड कंज्यूमर कैन कम टू अस ऑल्सो, कि मान लीजिए किसी को पत्थर सजेस्ट किया गया या स्टोन बताया गया या फिर किसी ने ज्वेलरी खरीदी और उसको डाउट हो रहा है कि मुझे माणिक्य का बोल के अगर हार दिया है तो वो माणिक्य का ही नेकलेस ना, वो रूबी का ही नेकलेस है ना, वो कहीं कुछ फ्लास तो नहीं है, वो कोई ट्रीटेड मटेरियल। तो एंड कंज्यूमर ऑल्सो come to us and can get certification of that material. It's like a professional body. Yes. तो ये सर्विस हम लोग दे रहे हैं। अब इस सर्विस में आपको हो सकता है क्यूरियोसिटी आए कि एक लेमैन कैसे जेमोलॉजिस्ट बन सकता है या कोई भी जेमोलॉजिस्ट कैसे बन सकता है। तो उसके लिए इट्स वेरी सिंपल, ऑल्दो इट्स अ टोटल साइंस। अच्छा। बट
the subject is really difficult but not impossible because it's a practical subject. So जिसको भी थोड़ा भी इंटरेस्ट है to know about the gem material या gem and jewelry फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो वो और she can come to me और come to us. और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि मेरा एक खुद का एक सोच है ऐसी कि if you have a blank paper you can write something, right, but it's already written, it's very difficult to rewrite on it. सही So मैं ये कहती हूँ कि it's not necessary कि आपका जेम एंड ज्वेलरी का बैकग्राउंड हो जेमोलॉजिस्ट बनने के लिए. अगर आपके पास नहीं है तो we'll teach you better वो because you will be like a raw, so we can polish you. Otherwise already polish है तो उसको मुझे पॉलिश करने में उसको भी परेशानी होगी और मुझे भी परेशानी. you become a certified value added. Yes. Once the person will pass the diploma, then he'll become a gemologist. Gemologist. And it's very short term course. It's not लंबा नहीं है, 3.5 महीने का पीरियड है जिसमें 10 से 3 आपको डेली क्लास अटेंड करनी है, जहाँ आपको थ्योरेटिकल सिखाया जाएगा एज वेल एज प्रैक्टिकल भी उतना ही सिखाया जाएगा. हम लोग लगभग 2000 के करीब स्टूडेंट से करवाते हैं, दिखाते नहीं है, उनके हाथ से करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं. तो उससे एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है. बस फर्क कहाँ पे होता है एक ज्वेलर और एक जेमोलॉजिस्ट में, कि आपके मन में एक क्यूरियोसिटी आती होगी कि क्या फ़र्क है. एक ज्वेलर इतना बड़ा शोरूम, इतनी बड़ी फैक्ट्रीज रन कर रहा है और उनको भी नॉलेज तो है, फिर आप में उनमें क्या फ़र्क है. एक जेमोलॉजिस्ट और एक ज्वेलर में छोटा सा फ़र्क है कि जेमोलॉजिस्ट टेक्निकली बड़ा साउंड होता है, उसके पास वोकैबुलरी होती है. एक ज्वेलर के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है. वो आपको ये तो कह देगा, जैसे फॉर एग्जांपल दीज आर एमराल्ड्स. सो ज्वेलर विल से कि ये एमराल्ड्स हैं, ये पन्ने हैं, ठीक है, लेकिन अब आप आगे पूछोगे कि ये कांच क्यों नहीं है, ये सिंथेटिक पन्ना क्यों नहीं है, या ये टूर्मलिन क्यों नहीं है, कोई और पत्थर क्यों नहीं है, तो वो ही इज नॉट कैपेबल टू आंसर यू because he doesn't have vocabulary. We people have so many technical aspects and the vocabulary. I will say why this is emerald only, because it's a green first of all, then it belongs to beryllium, aluminium, silica group, then it has some certain inclusion, it has some certain refractive index, it has some certain especially gravity. So that's why it's emerald. It's not any other stone. So from naked eye से आँख से तो दिखेगा नहीं, तो इसके लिए आपके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह. ज्वेलर कैन से अच्छा, ज्वेलर की ब्यूटी क्या है, ज्वेलर का इंटेलिजेंस क्या है, because he has practical knowledge, so he will confidently say it's emerald only. Okay, touch से या feel से भी पता ले. By looking at the stone. By looking at the stone. They actually they observe everything what gemologists observe. Okay. They see the luster, means shining. They see the transparency. They see the pleochroism also, but they don't know what are the terms. That's it. बस. That's that basic difference between jeweler and gemologist. और ज्वेलर ने जेमोलॉजिस्ट बनाया है, जेमोलॉजिस्ट ने ज्वेलर नहीं बनाया. ये ज्वेलर काम कर रहा था तो हमें आज इतनी नायाब चीजें हमारे हाथों में आती है और हम लोग R&D कर पाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाते हैं इस फील्ड में. तो हम लोग पहले इनको क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं, फिर जहाँ जरूरत होती है वहाँ एडवांस टेस्टिंग भी करते हैं, इनकी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट पे भी इनको देखा जाता है और सर्टिफिकेट इशू किया जाता है. एक चीज में हमेशा वो देखता हूँ कि जनरल पब्लिक वो बड़ा इसमें रहता है कि ये जेम्स की और एस्ट्रोलॉजी में कुछ कई बार जाते हैं आदमी के पास, वो बोले साहब ये पहन लेना, वो रियली इसमें कोई साइंटिफिक रीजन. इन शॉर्ट इफ यू कैन, आई नो द, देखिए ये वास्ट मैं हाँ, यहाँ पे ना आई कांट से द पब्लिकल ओपिनियन, आई कैन टेल यू माई ओपिनियन अबाउट दिस जेम मटीरियल. दैट इज माई एक्सपीरियंस की दिस स्टोन्स वर्क लाइक एंटीना. जैसे हमारा मोबाइल काम करता है कि मोबाइल पे आपके देयर इज नो वायर्स, देयर इज नो कनेक्टिविटी, यू कांट सी कनेक्टिविटी बट दे आर वर्किंग. तो एनर्जी जो किस तरह से ये डेवलप हुआ था, टेस्ला ने क्या किया था, फ्री एनर्जी को यूज करके तो ये सब लॉन्च किया था. तो जो फ्री एनर्जी है एटमॉस्फेयर में, दिस इज तो साइंटिफिक. व्हेन एनर्जी इज देयर तो कुछ एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ तो होता होगा. ईश्वर ने जब अर्थ के अंदर इतने पत्थर बनाए, इतनी रॉक्स बनाई, इसको हरा क्यों बनाया, इसको लाल क्यों बनाया, इसको नीला क्यों बनाया, तो कुछ तो रीजन है, कुछ तो लॉजिक है ना वहां पे, उन्होंने उनको बनाया. तो दीज स्टोन्स एब्जॉर्ब दैट पर्टिकुलर एनर्जी फ्रॉम द प्लेनेट, फ्रॉम पर्टिकुलर प्लेनेट, एंड इट गिव्स यू योर बॉडी. ऐसा जादू कुछ नहीं होता है. आई कांट से कि, और आई वोंट से
कि ये पहनते ही आप बहुत बड़े वीर हो जाओगे या आपका कोई रोग ठीक हो जाएगा, बट वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके आपके बॉडी को देते हैं। तो लैकिंग जो रहती है आपके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, कहीं कोई ग्रह की लैकिंग है जो ठीक नहीं है, पोजीशन ठीक नहीं है, या उनका जो भी एस्ट्रोलॉजर आपको सजेस्ट करता है, बोलता है, वो ही थोड़ा बेटर कर देते हैं। बेटर कर देते हैं तो आप में एनर्जी आती है एंड पर्सन विल वर्क, स्टोन वोंट वर्क, दैट पर्सन हैव दैट एनर्जी इन पर्टिकुलर लाइन और पर्टिकुलर गाइडलाइन, सो इट वर्क्स। तो अपने को सही आदमी को मिलना चाहिए, जो आपको परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर मिलना चाहिए, कि आपकी जन्म पत्री सही होनी चाहिए, आपका टाइम वगैरह परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी जब बर्थ करा रहा होता है तो वो पहले उसके मेन उसका मोटो क्या होता है, मदर और बेबी को एकदम सुरक्षित दोनों को सेपरेट कर दिया जाए, उसके बाद वो फ्री होके हैंड वॉश करके देन ही सी द वॉच एंड देन वो राइट करता है टाइम आप। तो थोड़ा सा भी घड़ी पल का भी फर्क आता है ना, तो एस्ट्रोलॉजी में फर्क आ जाता है, तो वो फर्क होता है। प्लस आप जिसके पास में जन्म पत्री दिखाने जा रहे हैं वो कितना लर्नेड पर्सन है, वो आपकी इट्स अ कैलकुलेशन, इट्स मैथमेटिक्स, सो वहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा भी फर्क क्या कर देता है, आपके रिजल्ट्स में फर्क ला देता है। तो इट शुड बी परफेक्ट। देन फाइनली आप जो स्टोन आपको सजेस्ट किया गया है, कि आपने वो सही स्टोन पहना है, उस स्टोन का सिमुलेंट तो नहीं पहन रखा। सही बात। इसलिए हम लोगों की जरूरत पड़ती है कि हम लैब की जरूरत पड़ती है कि आपको जो भी पत्थर सजेस्ट किया जाए, आप किसी ज्वेलर से जब खरीदने जाए तो यू शुड आस्क फॉर द सर्टिफिकेट और यू शुड आस्क फॉर द लैब कि मैं इसको कहाँ पे टेस्ट कराऊं। तो नेशनली और इंटरनेशनली बहुत सारी लेबोरेटरीज है, उनमें से एक हम है जेमोलॉजिकल साइंस इंटरनेशनल, जहाँ मैं एज ए ग्लोबल हेड जेमोलॉजिस्ट कार्य कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। 6 कंट्रीज का जो भी कलर स्टोन का काम होता है उसको मैं देखती हूँ, ये मेरा मेन काम है। यहाँ पे हम लोग एडुकेशन भी रन कर रहे हैं। अच्छा। तो मैं ये दैट इज माय पर्सनल सजेशन टू पब्लिक, नॉट ओनली ऑफ द बीच, इवन ऑल पब्लिक हु इज लुकिंग दैट एपिसोड। हाँ, उसमें मैं ये बोलूँगी कि बहुत ही जल्दी से करियर बनाने वाला फील्ड है, जहाँ 3.5 महीने में अगर आप डिप्लोमा पास करते हैं तो यू हैव सो मेनी फील्ड्स टू वर्क। लाइक पहले का जमाना गया जब एक गोल्ड स्मिथ हुआ करता था, आपकी ज्वेलरी गढ़ता था, वो बनाता था। अभी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, नेशनल इंटरनेशनल फैक्ट्रीज है ज्वेलरी की, जहाँ पे 2-3,000 people are working together. So if you are a technical person, they really need day-to-day gemologist, and we laboratories really require gemologist. तो अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो आपको लैब में काम कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं, आप लैब ओपन कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, एज ए अप्रेजर जा सकते हैं। बिकॉज एक और चीज मैं आपको शायद बताना भूल गई, कस्टम कमिश्नर्स को मैं पढ़ाती थी और पढ़ाती हूँ कि वो पोर्ट में जब जेम एंड ज्वेलरी से रिलेटेड कोई चीज आए तो कैसे पहचान, कैसे वैल्यू करे। तो आई वाज द रेगुलर ट्यूटर फॉर देम। यस नार्कोटिक्स में भी मैंने लेक्चर लिया है पूरा। इस पढ़ाई में कितना खर्चा आता होगा अंदाज से? हम लोग तो इंटरनेशनल बॉडी होते हुए भी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं हमारे। जैसे आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे कभी सर्च करेंगे कि जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ है, किस तरह से कोर्स कराते हैं, तो यहाँ बहुत बड़े बड़े नाम है, GI है, IGI है, GSI खुद है, देन और भी बहुत है, GAGTL लंदन है। उन सबको अगर कंपेयर आप करेंगे तो जैसे GI की फीस लगभग 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा आता है आपको, या IGI में जाएंगे तो 2.5 से 3 लाख का खर्चा आएगा, डिप्लोमा करेंगे। इट इज अप्रोक्सीमेट, आई एम नॉट नोइंग द एग्जैक्ट फिगर, बट वी जेमोलॉजिकल साइंस इंटरनेशनल 1,17,000 में ये कोर्स कराते हैं प्लस GST। It's nothing. And plus अपने इतना जल्दी आप रेडी भी हो जाते हैं, जहाँ पे आपको ये 2 मेरी लिखी हुई टेक्स्ट बुक मिलती है, जहाँ पे आपका जिंदगी भर जो ये आप देख रही है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द मिनरल्स है, जितना नॉन मटेरियल है, जितना जेम मटेरियल है, और सब पे 5 इयर्स का एक्सपीरियंस प्लस मेरी टीम का एक्सपीरियंस, सब कुछ इसमें समेटा हुआ है। तो ये जीवन भर उनके काम आएगी। वंस यू डिड दैट डिप्लोमा, आप कभी भी उठा के रेफर कर सकते हो कि मेरे हाथ में कौन सा पत्थर है, उसको आइडेंटिफिकेशन करने का क्या तरीका है, ये देंगे। प्लस आपको एवरीथिंग प्रोवाइडेड बाय द लैब ओनली। आप कुछ पेन पेंसिल भी आपको लेकर नहीं आना। बहुत अच्छी आपने इंटरनेशनल डिग्री, बहुत अच्छी आपने, दिस इज समथिंग न्यू कि इतने शॉर्ट पीरियड में एंड नॉट टू मच ऑफ अ कॉस्ट यू कैन मेक ए करियर इन दिस। और किसी को अगर इसका प्रोफेशन अगर करना हो तो आई थिंक दैट विल बी ए कॉस्टली अफेयर। खुद का ही सर्टिफिकेशन वर्क करना, लैब he or she can open their lab, he can open that, yes that is also possible, although it's a
As I told you, that sophisticated instruments are very expensive, but classical instruments में आप basic gemology कर सकते तो अपने खुद पे वो हैं, बिल्कुल कर सकते he can start his own career. हैं. Yes, And opportunities will be people are available. doing, lots of people are doing, lots of my students are doing that. अच्छा, Nationally, internationally, they are doing that. so they, as soon as they come out, they will be able to do Yes, their work. but they need some practice. Yeah. It's not overnight journey or overnight work. You need, this subject needs practice, practical practice. बहुत अच्छा लगा करके. And और भी आप कोई बच्चों को और भी कुछ मेरा यही कहना है कि देखिए ये जो वर्ल्ड है, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड. मैं ये कहूँगी कि हमने एक्सप्लोर, जो भी है आम आदमी एक्सप्लोर कर पाता है ब्यूटी ऑन द अर्थ, लेकिन वी पीपल एज ए जेमोलॉजिस्ट वी एक्सप्लोर बीनीथ द अर्थ. सारी जो अंदर की ब्यूटी क्या है. वंस आई रोट एन आर्टिकल ऑन द एमरल्ड दैट अर्थ में जितने ऊपर फ्लावर बने हैं, जितने सुंदर सुंदर आप प्रकृति देखते हो, ग्रास देखते हो, फ्लावर्स देखते हो, बट बीनीथ द अर्थ भी इतने सारे जेम्स जो है, दे आर फ्लावर्स. They are flowers. Emeralds are greenery of them. So अर्थ ने उतनी ब्यूटी अंदर भी बिखेरी है, एंड उसको एक्सप्लोर करने में, उसको पढ़ने में, समझने में बहुत मजा आता है. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड. इफ यू आर कमिंग टू इन, you will have a passion about the gem material, so definitely you will succeed in it. बहुत अच्छा लगा आपसे एक नई जानकारी आप लोगों को मिली जेम्स के बारे में, which is very difficult to get. Today we are very thankful to Minu ji for sharing her Thank you, experience. Devesh ji. Thank you So much kind of you. Thank you. Thank Wish you you. all the best. Thank you.